Greetings of the day, dear friends and students. In last lecture, we have gone through the different fundamentals of estimating and costing, in which we have seen the definitions of estimating and costing, the purposes. Then we have seen the different types of the estimates, that is approximate estimate and detail estimate. Also, we have seen the different types of the detail estimates. Then we have seen roles and responsibilities of the estimator. Then after that, we have gone through the checklist of the load bearing structure and RCC structure. So now, as we have discussed in previous lecture, that we are supposed to check what exactly the unit of measurements are being there, and in what particular unit of measurement the item of work is supposed to be calculated. So just have a look on that particular thing. That as I already told you that while going for calculation of any of the item of work, first of all, every estimator should know that in which particular unit that particular item of work is supposed to be calculated, so as to go for proper calculation. And after going for a calculation, you can particularly calculate the proper quantity and can get a proper rate for that particular thing. Because even though I have given one example that अगर मेरे को मार्केट में जाके अगर शुगर परचेज करना है और आई डोंट नो इन व्हाट पर्टिकुलर क्वांटिटी और यूनिट दैट पर्टिकुलर मटेरियल और दैट पर्टिकुलर आइटम इज सपोज टू बी परचेज, और मैं दुकान में जाकर अगर बोलता हूँ कि मुझे 1 लीटर शक्कर दीजिए, सो व्हाट विल बी देयर? ऑब्वियसली द शॉपकीपर विल बी टेक फन ऑफ माइंड, क्योंकि मुझे उसका प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मालूम नहीं है और उसकी वजह से मुझे जो भी उसका रेट था वो ना मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कितना होता है, एंड आई कैन नॉट परचेज इट बिकॉज इन मार्केट दैट पर्टिकुलर आइटम इज बीइंग sold in kg. And that's why likewise each and every item whatever we are executing in civil engineering construction, that is supposed to be known by every estimator while going for calculation. So let's have a look. The units of measurements for civil engineering works are mainly categorized for their nature, shape, size, and for making payments to the contractor. So according to the its size, shape means if what we can say that if it's all three linear dimensions are comparable, then you are supposed to go for an volumetric calculation. If it's two measurements are the comparable and another third one is negligible with respectively comparable with the other two dimensions, then you can go for a measurement of area, that is square meter. So likewise the measurements or the unit of measurements are basically depend on the shapes and sizes of that particular item of work. Then the principle of units of measurements normally consist of the following. What is that? We are going to see. Number one, the single units work like doors, windows, trusses, etc. is expressed in number. Single unit work means it is a single panel or single work that what we are going to calculate in our particular calculations. In that particular thing, we are going to calculate these particular items in number. Basically, when this is taken in the number, when its size, shape, and these all things are perfectly same on every side, so that kind of the item of work is going to be calculated in number. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि देखो कौन सी चीज आप नंबर में कैलकुलेट करोगे. जिसी भी आइटम के लिए आपका स्पेसिफिकेशंस यानी उसके थिकनेस हो, विड्थ हो, हाइट हो, ये सब चीजें जो स्टैंडर्ड होते हैं कहीं पर भी आप जाओगे, तो इस प्रकार के आइटम के लिए आपको नंबर में आप क्वांटिटी ले सकते हो. उसके लिए लेंथ, विड्थ, हाइट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल दी components of that particular item is depend on the standard dimensions. If आपका अगर 1.2 मीटर का डोर है तो कहीं पे चले जाओ, आपके 1.2 के डोर के लिए जो भी आइटम लगने वाला है वो सेम लगने वाला है, and that's why that particular items are going to be calculated in numbers. Then the work consists of linear measurements, involve length like cornice, fencing, handrail, bands of specific width are expressed in the running meters.
So the things which we are supposed to be calculated in learning domain. So what exactly the like cornice, fencing, as we are आप लोग देखते होंगे कि यानी कंपाउंड वॉल की जो कुछ भी फेंसिंग होती है, वो फेंसिंग का जो कुछ भी आइटम होता है, दैट पर्टिकुलर सपोर्ट्स एंड दैट ऑल थिंग्स आर बीइंग सेम फॉर एवरी स्पैन, एंड दैट्स व्हाई अगर आपका हर स्पैन के लिए सेम आइटम ऑफ वर्क लगेगा, कहीं पर भी आप काम करते हो, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप रनिंग मीटर में कैलकुलेशन कर सकते हो. जैसे हैंड रेल है, तो हैंड रेल के लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके 1 मीटर पे या 1.5 मीटर पे आपको स्पेसिफिक उसके सपोर्ट देने हैं, ये कंफर्म है. कहीं पर भी आप जाओगे तो हैंड रेल अगर बैठाना है तो उतने ही पर्टिकुलर मेजरमेंट पे उसके सपोर्ट्स आएंगे, उसके जो कुछ भी गैप आता है वो उतना ही आपको रखना पड़ता है. दैट इज ऑल being same at any of the places, and that's why such a kind of the item of work is being calculated in running meter. Then next one, that is the works consists of aerial surface. Measurements involve area like plastering, whitewashing, partition of specified thickness, etc. and are expressed in square meters. यानी जैसे आप देखते हो कि प्लास्टर अपने को करना है, अगर प्लास्टर आप देख लेते हो तो इट इज ओनली 12 mm थिकनेस, एंड एज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड कंपोनेंट जो है मेजरमेंट का, अगर वो निग्लिजिबल है कंपेयर टू द अनदर 2 मेजरमेंट्स, तो आपको उसको एरिया में लेना पड़ेगा. यानी प्लास्टर का अगर आप सोचोगे तो उसकी थिकनेस होती है 12 mm, बट आप अगर प्लास्टर की साइज ले लोगे तो अगर 3 बाय 3 मीटर का भी रूम है तो आपका 3 मीटर बाय 3 मीटर यानी दो जो मेजरमेंट्स है वो बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू 12 mm, एंड दैट्स व्हाई सच अ काइंड ऑफ द आइटम ऑफ वर्क इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड इन द एरियल मेजरमेंट्स, दैट इज एरिया, और उसको अपन कैलकुलेट करेंगे मीटर स्क्वायर में. उसके बाद में वर्क कंसिस्ट ऑफ क्यूबिकल कंटेंट्स विच इन्वॉल्व वॉल्यूम लाइक अर्थवर्क, सीमेंट कॉन्क्रीट, मेसनरी एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर. यानी कि ये जो आइटम है जिसकी क्वांटिटी ऑल इन 3 डायमेंशंस लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज कंपेरेबल विद ईच अदर. सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग यू आर सपोज टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्यूबिक मीटर, यानी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. सो लाइकवाइज you are supposed to calculate the quantity in volume. Okay, so now after this we are going to see the table for unit of measurement, what exactly the calculation quantities will be there. So according to the IS 1200 for different item of work, what should be their unit of measurement, that all things are being mentioned in this particular file. So you can see that the earthwork for excavation is calculated in cubic meter. Earthwork in filling for foundation trenches also will calculated in cubic meter. Earthwork in filling in plain, that is also being calculated in cubic meter. The concrete item or to the concrete work, whatever we have mentioned, that all will be calculated in cubic meter. But in lean concrete in roof terracing, that is thickness is specified, the for which the standard thickness is there. For lean concrete, that will be calculated in square meter. Cement concrete bed will be cubic meter. Reinforced concrete sunshed will be in cubic meter. So DPC, that is damp proof course, will be in square meter. So likewise you can go with this particular table or this particular file wherein the every item of work and their unit of measurement is being mentioned over here. Basically I would like to only give you an example. जैसे आपको मैंने बताया कि जिसकी स्टैंडर्ड थिकनेस फिक्स होती है, यानी इजंट इवन इफ दैट पर्टिकुलर आइटम इज एन वॉल्यूमेट्री, बट उसकी थिकनेस जो है आप कहीं पर भी चले जाओ सेम ही अगर मिलेगी, तो वैसे आइटम भी आपको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट द पार्टीशन वॉल्स इन ब्रिक मेसनरी, वट एवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिक मेसनरी वॉल्स इन पार्टीशन, उसकी जो थिकनेस होती है हाफ ब्रिक थिक, वी कैन से दैट. So that will be in square meter. So this thing is very important to be understand. आपको लगेगा कि ब्रिक मेसनरी है तो वॉल्यूमेट्रिक ही निकालना है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जैसे कि आप लोगों को पार्टीशन वॉल की हाफ ब्रिक थिक कहीं पर भी चले जाओ सेम ही मिलेगी, तो उसके लिए ये जैसे थिन पार्टीशन वॉल रहेगी आपकी, तो उसको आपको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना है. सो लाइकवाइज यू कैन गो थ्रू दिस टेबल and can get the different unit of measurements for different item of work. Okay, so now after getting unit of measurements, the next one is desired accuracy as per IS 1200. आपने अभी तो देख लिया कि
व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी रनिंग मीटर है, नंबर है, स्क्वायर मीटर है या क्यूबिक मीटर है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट शुड बी द डिजायर एक्यूरेसी, यानी मुझे अगर समझो लेंथ कैलकुलेट करना है, विड्थ कैलकुलेट करना है, या एरिया कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. सो व्हाट शुड बी द डिजायर्ड एक्यूरेसी, उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए. सो दैट आल्सो एन एस्टिमेटर शुड बी नो, बिकॉज इस वजह से यानी डिजायर्ड एक्यूरेसी की वजह से आपको समझ में आता है कि मेरा काम कितना परफेक्ट होना चाहिए या किस लिमिट तक उसे एक्सेप्टेबल किया जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द IS 1200, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि IS 1200 इज IS कोड that is related to the unit of measurements and its accuracy. Okay, so now we are going to see this. The rules for measurements of each item are invariably described in IS 1200. उसके बारे में आप लोग देखोगे. So number 1, the measurement shall be made for finished item of work and description of each item shall include materials, transport, labor, fabrication, tools and plants and all type of overheads for finished the work in required shape, size and specification. पहले बात तो इन्होंने बताई है कि मेजरमेंट कंप्लीट आइटम ऑफ वर्क ही लिए जाएंगे, अनकंप्लीट वर्क का मेजरमेंट आप नहीं ले सकते, द फर्स्ट थिंग. उसके बाद में जब भी आप आइटम को डिस्क्राइब करोगे तो आपको डिस्क्राइब करते टाइम में उसके बारे में हर एक चीज के बारे में आपको बताना है, जैसे मटेरियल हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, लेबर हो, फैब्रिकेशंस के लिए लगने वाले जो कुछ टूल्स एंड प्लांट्स हो, फैब्रिकेशन इन द सेंस कंस्ट्रक्शन के लिए टूल्स एंड प्लांट्स हो. उसके बाद में इसके अलावा भी कुछ अगर ओवरहेड्स है जो फिनिश करने के लिए लगते हैं, उसकी साइज हो, शेप हो, इस बारे में आपको डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी. दैट इज द फर्स्ट केस. द सेकंड वन इज इन बुकिंग. द बुकिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स. ओके, सो इन बुकिंग द ऑर्डर शेल बी इन सीक्वेंस ऑफ. जब भी आप मेजरमेंट लिखोगे किसी भी आइटम ऑफ वर्क का, सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर फिक्स रखना पड़ेगा. इट शुड बी यूनिवर्सल. हर एक जो भी बंदा एस्टिमेटिंग कर रहा है उन सब के लिए यही सीक्वेंस होगा. पहले उसने लेंथ लिखना है, फिर विड्थ लिखनी है, और उसके बाद में ही हाइट और थिकनेस लिखना है. ओके, सो दैट शुड बी द परफेक्ट ऑर्डर फॉर बुकिंग ऑफ द एनी मेजरमेंट्स. द नेक्स्ट वन, द ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टॉलरेंसेस. जैसे अपन ने बोला था कि व्हाट शुड बी द टॉलरेंस हर एक बारे में, यानी उसका लीनियर मेजरमेंट लेना है तो उसका क्या टॉलरेंस चलेगा, एरिया लेना है तो क्या चलेगा, और क्यूबिक मीटर है तो क्या टॉलरेंस चलेगा. सो दिस आर दी पर्टिकुलर कंडीशंस. द लीनियर मेजरमेंट शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर. अगर आप मेजरमेंट्स ले रहे हो तो मेजरमेंट्स में वेरिएशन 0.01 मीटर तक चलेगा, उससे ज्यादा और कम कैलकुलेशन करते टाइम में आप नहीं ले सकते. दैट शुड बी इन द tolerance or the accuracy of 0.01 meter. Then next one, the area shall be measured to the nearest of 0.1 square meter. अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो एरिया कैलकुलेट करते टाइम में भी आपको 0.01 मीटर स्क्वायर के ही टॉलरेंस में उसको कैलकुलेट करना है. उससे ज्यादा अगर एक्यूरेसी यानी आपका एरर आता है, दैट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फिर गलत हो जाएगा. लास्ट वन, द क्यूबिक कंटेंट शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1 cubic meter. So these are the what tolerances that is being explained in this particular IS 1200. ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है कि what are the particular we can say that what are the I will tell you that what are the desired accuracy as per IS 1200, that is being asked in every question. So you are supposed to be prepared for this. The next one, the same type of work under different conditions and nature shall be measured separately and under separate items. This is the very important part. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग जब एस्टिमेट बनाने बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि अगर समझो एक आइटम है तो वो एक आइटम सब एक ही आइटम के अंडर कैलकुलेट करना है. यानी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर समझो मुझे एक्सकेवेशन का पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप अगर एक्सकेवेशन का पार्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्सकेवेशन में भी देखिए, अगर समझो सॉफ्ट सॉइल होती है तो सॉफ्ट सॉइल के लिए रेट अलग है, बराबर है ना. डीएसआर आप देखोगे तो सॉफ्ट सॉइल के लिए रेट अलग है, सॉफ्ट मुरुम के लिए रेट अलग है, हार्ड मुरुम के लिए रेट अलग है. सो ऑल दिस टाइप ऑफ द मटेरियल और ऑल these natures depend on these natures, the rate are different, and that's why these items are supposed to be calculated separately.
अगर एक्सकेवेशन का पार्ट एक ही है, फिर भी आपका रेट अलग अलग होने की वजह से और दी नेचर कंडीशन उसके अलग होने की वजह से आपको ये आइटम सेम होके भी एंड एक्सकेवेशन का ही पार्ट होके भी क्वांटिटी आपको सेपरेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये पार्ट जो है बहुत आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। और पर्टिकुलरली मैं आपको हाईलाइट करके याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप ये जो पार्ट है ये पर्टिकुलरली कब सबसे ज्यादा काम में आता है वो बोलता हूं, जब आप आगे जाके वेल यानी जो अपन कुआं बोलते हैं समझो हिंदी में, और मराठी में विहीर बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी आपको लास्ट के चैप्टर में निकालनी है। एंड एट दैट टाइम दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज जब आप वेल एक्सेप्ट करते हो तो उसमें अलग अलग टाइप के लेयर्स आपको मिलते हैं। एंड व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग वन मिस्टेक, जितनी भी टोटल डेप्थ दी हुई है वो सब डेप्थ के लिए एक साथ में कैलकुलेशन करते हैं एंड एट वंस दे आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी। उसके बाद में अगर देखेंगे अपन, सो द बिल ऑफ क्वांटिटी शैल फुल्ली डिस्क्राइब द मटेरियल्स, प्रोपोर्शंस, वर्कमैनशिप एंड अकॉर्डिंगली प्रेजेंट द वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड। सो ये जब आप बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाते हो तो उसके अंदर सब चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी। In case of masonry, stone or brick or structural concrete, the categories shall be measured separately and the height shall be described as। यानी जब भी आप अगर समझो साइड पे काम करते हो या फॉर एग्जांपल आप उसकी क्वांटिटीज का कैलकुलेशन करते हो तो उसके लिए लेवल्स क्या क्या होनी चाहिए वो बताया है। व्हाई दीज आर बीइंग मेंशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बस्ट हैव अ लुक व्हाट आर दैट। द फ्रॉम फाउंडेशन टू द प्लिंथ, ये एक अलग लेवल होनी चाहिए। प्लिंथ से फर्स्ट फ्लोर तक अलग लेवल होनी चाहिए, एंड फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर लेवल एंड सो ऑन। ये क्यों यानी इसको डिवाइड किया है, ये पर्टिकुलरली मेसनरी के बारे में या स्ट्रक्चरल कंक्रीट के बारे में, वो आप समझ लो। क्योंकि क्या होता है देखिए, जब फाउंडेशन टू द प्लिंथ लेवल आप काम करते हो तो आपको नो एनी स्टेजिंग और दिस पर्टिकुलर वर्क स्कैफोल्डिंग आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यानी प्लिंथ लेवल तक आने तक आपको मटेरियल भी जगह पे ही मिल जाता है काम करने के लिए, यानी उसको शिफ्ट करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। यानी ग्राउंड लेवल पे मटेरियल अवेलेबल है तो कम लोगों में भी आप काम कर सकते हो, दैट इज द थिंग। और आपको स्टेजिंग हो गया या पर्टिकुलर स्कैफोल्डिंग हो गया, ये सब आपको लगाने की जरूरत नहीं गिरती है इस केस में। बट वेन यू गो ऑन फ्रॉम प्लिंथ टू द फर्स्ट लेवल, इफ यू ऑब्जर्व, आपको समझो लिंटर लेवल का कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले मेसन को आपके स्टेजिंग खड़ा करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाद में वो काम करेगा। इवन दो फॉर गेटिंग अ मटेरियल ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल one more extra labor will be required, and that's why it is mentioned that from plinth to the first level the different items should be considered, even though if the item is same। उसके बाद में हर एक स्लैब के लेवल को अगर आप जाते हो तो हर एक स्लैब फ्लोर के लिए अलग अलग क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज द थिंग इट इज मेंशन। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू दिस टू पर्टिकुलर थिंग्स wherein we have seen the particular unit of measurements and particularly the desired accuracy required for the unit of measurement as per IS 1200. In next lecture we are going to see how to use DSR, then what are the sequence of the execution, these all things we are going to see. So right now just go through these details and keep watching, keep learning, be safe, be at home. Thank you very much.